Let us start double titration. So what is double titration? Okay. Oh, okay. So double titration means if you take two acids in a conical flask. Suppose conical flask you have taken. In that conical flask you have taken two acids. Okay. तो कोई भी दो एसिड है, एसिड मिक्सचर, एसिड 1 plus acid 2, two different acid mixture solution, and you are titrating with one base. Okay, so you are taking two acids and titrating with one base. So this is called double titration. Or you can take base 1 plus base 2, and you titrate with simultaneously. If you titrate with one acid, okay, so if you titrate with one acid, this type of titration is known as double titration. This is also. Or you may take like this. You may take oxidizing agent 1, oxidizing agent 1 plus oxidizing agent 2. Okay, oxidizing agent 2, and if you titrate with one reducing agent. Okay, so if you titrate with one reducing agent, okay, or you may take like this. You may take two reducing agent. You may take reducing agent plus reducing agent 1 plus reducing agent 2, and you titrate by taking one oxidizing agent. Okay, and this you can do by using at least two indicators. So you can use indicator 1 and indicator 2. Indicator 2. So indicator you can use either or both. Okay, either indicator 1 you can use or indicator 2 you can use, or both. It's not necessary only two, you can use any two indicator, any two. Out of more than 100 indicators are there, 1000 indicators are there in laboratory, so you can use any two indicators for doing these titrations. So these are example of double titration. Okay, so whatever is there in syllabus we'll discuss double titration with one example. We'll take base 1 base 2 titrated with acid. Suppose you take base 1, so base 1 you can take NaOH, and base 2 you can take Na2CO3. Okay, and you can titrate with, in butyrate you can add HCl. So base 1 plus base 2, when you titrate with HCl, and this type of titration is known as double titration. Clear? And in this double titration you can use indicator like phenolphthalein. You can use indicator phenolphthalein, and also you can use another indicator called methyl orange. Okay, so you can use indicator phenolphthalein, you can use indicator methyl orange. What is nature of phenolphthalein? Phenolphthalein indicator has some pH range, and this pH range is 8.1 to 10.5. Okay, and methyl orange indicator pH range is 3.1 to 4.4. Okay, so the pH range means what?
pH range means if you take methyl orange before 3.1, its color is red. Its color is red color. Red color. And methyl orange, if you take 4.4, okay, so if you take 4.4, it will not be red, it will be orange color. So after 4.4, it will be orange color. Okay. So suppose you keep methyl orange in a solution where pH is more than 4.4, it looks orange color. And less than 3.1, it looks red color. Okay, some books write pink also. Some books write pink red. It is like red and pink mix, I feel. So pink red or red color we can say. And suppose you use phenolphthalein. So phenolphthalein you will find after 10.5 its color is purple. Some books write pink also, purple color. And before 8.1 it is colorless. It is no color, colorless. Okay, it will be purely colorless. No color will be there. There will be no color, colorless. Okay. So this is the indicator color in different pH. Okay. So indicators will show the तो pH phenolphthalein pH 7 में न्यू कलरलेस होगा और मिथाइल ऑरेंज pH 7 में ऑरेंज कलर होगा. ओके. तो जितने भी इंडिकेटर है वी हैव सो मेनी इंडिकेटर्स. ओके. ऐसा नहीं कि litmus solution is also indicator. So we have indicators, many indicators are there. About indicators we will study in ionic equilibrium chapter separately. माने आयनिक इक्विलिब्रियम में इंडिकेटर बोल के एक सब टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में डिटेल्स इन डेप्थ. ओके. तो इस टेल मी. हाँ बोलो सत्यम. हाँ इन बिटवीन क्या कलर होता है वही मैं बोल रहा हूँ. इन बिटवीन क्या होगा, ये दोनों का मिक्स होगा, रेड प्लस ऑरेंज. तो दोनों का मिक्स होगा तो हम लोग डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. यहाँ पे पिंक पर्पल और कलरलेस का मिक्सचर होगा, लाइट पर्पल आएगा फिर. तो ये जो बीच बीच में पीएच अगर उसका इंडिकेटर रखेंगे तो ये कलर जो है मिक्स होके आएगा. इसके बाद परमानेंट ऑरेंज हो जाएगा, इससे पहले परमानेंट रेड हो जाएगा. इसलिए इंडिकेटर का पीएच रेंज होता है. एक पीएच के बाद वो एक परमानेंट कलर आता है, वो कांस्टेंट रहता है. कुछ भी पीएच इससे ज़्यादा हो वही कलर आएगा, चेंज नहीं होगा. और इस ये कलर है ये पीएच से पहले, इससे पहले अगर इससे कम होगा कोई भी पीएच तो यही कलर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन इसके बीचों बीच हम पता नहीं कर सकते ये रेड है या ऑरेंज है, दोनों का मिक्सचर आएगा. हम लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या रेड, कोई बोलेगा रेड, कोई बोलेगा ऑरेंज, कोई बोलेगा ऑरेंज रेड, कोई बोलेगा रेड ऑरेंज. तो इसका बीचों बीच कलर डिस्टिंक्शन ह्यूमन आई के लिए डिफिकल्ट है. लेकिन इससे पहले डिस्टिंक्ट है, इससे पहले क्लियरली विजिबल है. ओके. इसके बाद क्लियरली विजिबल है, इसलिए ये कलर जो है तो ऐसे हम डिस्टिंक्ट पीएच रेंज में करते हैं क्योंकि इसका अंदर मिक्सचर कलर आता है. तो ऐसे ही 10.5 के बाद प्योर पर्पल आएगा, इससे पहले कलरलेस आएगा. ठीक है. तो इसके बीच में इधर कलरलेस होगा या पर्पल होगा, क्योंकि ये तो कलर नहीं है ना दोनों का मिक्सचर, तो पता नहीं चलेगा. तो इससे इसके बाद 100% पर्पल आएगा, वो कलर कांस्टेंट रहेगा. दिस इज द इंडिकेटर्स कलर. एंड जितना भी इंडिकेटर है, अब हम कोई भी इंडिकेटर लेंगे नेचर में जो अवेलेबल है, सबका कोई ना कोई पीएच रेंज होगा. ओके. पीएच रेंज होगा तो होगा, और उसका भी कलर वो डिफरेंट पीएच रेंज में डिफरेंट आएगा. ओके. तो सपोज मैं और एक लेता हूँ एग्जांपल लेके लिए, और एक ले लेता हूँ. ठीक है. मैं ले रहा हूँ ब्रोमोफिनोल ब्लू बोल के एक इंडिकेटर है, इसका नाम है ब्रोमोफिनोल ब्लू. ब्रोमोफिनोल ब्लू. यस. तो हाँ
हाँ, वो सब इंडिकेटर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या इंडिकेटर करेंगे, वीक एसिड वीक बेस के लिए कौन सा, टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, वो सब है, उसका चैप्टर है, सब टॉपिक है इंडिकेटर बोल के। हाँ हाँ, इंडिकेटर टाइट्रेशन पे डिपेंड करता है। हाँ, इंडिकेटर का चॉइस हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आएगा। इस चैप्टर में थोड़ा बहुत इंडिकेटर का एप्लीकेशन है। इंडिकेटर हम यूज करेंगे लेबोरेटरी में, प्रैक्टिकल करेंगे। नहीं 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 नहीं, सब में नहीं होगा। देखो, जिसका पीएच रेंज ज़्यादा होगा उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। जिसका पीएच रेंज कम होगा, माने टाइट्रेशन का भी एक पीएच रेंज होता है और ये इंडिकेटर का पीएच रेंज होता है। तो इंडिकेटर का पीएच रेंज का जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द इंडिकेटर का पीएच रेंज, जो टाइट्रेशन में जो पीएच हो रहा है, टाइट्रेशन होने के बाद जो पीएच आएगा सॉल्यूशन का, उसके साथ मैच होना चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं। इसका मिडिल पॉइंट अराउंड 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9.2, 9.3 आया। तो 9.3 आया, जो टाइट्रेशन होने के बाद उसका पीएच 9.3 आएगा, ये इंडिकेटर यूज करेंगे तो बेस्ट होगा। इसका मिड पॉइंट देखो, इसका मिड पॉइंट आएगा। हाँ, मिड पॉइंट देख के, मिड पॉइंट और टाइट्रेशन का पीएच, जो जिस पीएच में टाइट्रेशन हो रहा है उसका मैचिंग होना चाहिए। अगर मैच हो रहा है वो इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर है। तो ये सब आएगा बाद में, हम लोग पढ़ेंगे। अभी इंडिकेटर एक में ले रहा हूँ, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू ये क्या करता है, ये इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में ब्रोमोफिनॉल ब्लू एसिडिक मीडियम में येलो दिखाता है और बेसिक मीडियम में ब्लू दिखाता है। मतलब ये 3 से पहले ये दिखाएगा येलो, येलो दिखाएगा, ठीक है। और 4.6 के बाद ये दिखाएगा ब्लू कलर, ठीक है। ये दिखाएगा डीप ब्लू कलर, ब्लू कलर। तो सब इंडिकेटर का ऐसे ही पीएच रेंज होगा। मतलब एक लोएस्ट पीएच से पहले जो कलर आएगा उसको बोलते हैं एसिड कलर। हाईएस्ट पीएच से बाद में जो आएगा उसको बोलते हैं बेसिक कलर, बेस कलर। तो दो डिफरेंट कलर होगा, या एक कलरलेस दूसरा कलर होगा, ऐसे करके हो सकता है। और जो इंडिकेटर का दोनों में से कोई एक कलर होगा या दोनों ही कलर होगा, उसको हम लोग टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं। और इंडिकेटर क्या होता है, वीक ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस होता है जिसका कलर होता है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड बेस का कलर होता है, सबका नहीं होता है। जिसका कलर होगा उसको हम लोग इंडिकेटर जैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इंडिकेटर। और इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। इंडिकेटर डिफरेंट पीएच में डिफरेंट एंड पॉइंट आएगा। तो अब हम अगर ये डबल टाइट्रेशन कंटिन्यू करेंगे, NaOH और Na2CO3 को हम टाइट्रेट किए, इसको हम कोनिकल फ्लास्क में ले लिया, ठीक है। तो अगर हम इसको कोनिकल फ्लास्क में ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, NaOH और Na2CO3 को कोनिकल फ्लास्क में ले रहे हैं। समझ में आया? NaOH Na2CO3 को कोनिकल फ्लास्क में ले रहे हैं, हम ब्यूरेट से HCl ऐड कर रहे हैं। अगर ब्यूरेट से HCl ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन होगा। पहले रिएक्शन क्या होगा देख लेते हैं, उसके बाद इंडिकेटर और उसका यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन होगा, पहले NaOH रिएक्ट करेगा HCl के साथ। तो क्या आएगा, NaCl प्लस वाटर, ओके। तो NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस वाटर आएगा। उसके बाद Na2CO3 HCl से रिएक्ट करेगा, तो आएगा NaCl प्लस NaHCO3, ये आएगा। NaCl प्लस NaHCO3 आया, तो उसके बाद NaHCO3 जो आया वो NaHCO3 HCl से रिएक्ट किया, तो ये आएगा NaCl प्लस H2CO3, ये आएगा, ओके। तो हाँ हाँ, OH उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O प्लस CO2 भी लिख सकते हैं। तो ये 3 इसका रिएक्शन है, 1 2 3। तो इसमें इसका 3 टाइप का 3 रिएक्शंस है, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस वाटर, Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस NaHCO3,
फिर NaCO3 HCl ये आएगा, ये 3 रिएक्शन होगा। लेकिन कुछ हाँ, तो ये दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं, ये दोनों को ऐड कर दो एक साथ, इसको हम लोग लिखते हैं Na2CO3 प्लस 2HCl, ये देगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है तो ऐसे लिखना है। अब क्वेश्चन ये है, अगर सोल्यूशन में NaOH Na2CO3 है, उसमें HCl ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन कैसे होगा? 3 ऑप्शन है, HCl NaOH Na2CO3 के साथ साइमल्टेनियसली रिएक्ट करेगा, साथ साथ एक साथ रिएक्ट करेगा, और NaCl ये रिएक्शन 1 to पैरेलल होगा। या ऑप्शन 2, HCl पहले NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH खत्म हो गया, उसके बाद HCl Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा। ऑप्शन 3, HCl क्या करेगा, पहले Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, Na2CO3 खत्म हो गया, फिर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये HCl ऐड करने से HCl देखेगा दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो HCl ऐड करने से पहले दोनों में जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ HCl रिएक्ट करेगा। तो HCl पहले NaOH से रिएक्ट करेगा, तो HCl पहले NaOH से रिएक्ट करेगा। जब तक NaOH है, NaOH किसी को अलाउ नहीं करेगा HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए। NaOH खत्म हो गया, उसके बाद Na2CO3 रिएक्शन होगा, फिर Na2CO3 खत्म हो गया, फिर NaCO3 प्रोड्यूस हो रहा है, फिर NaCO3 फिर HCl के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब reaction 1 will occur once this reaction is complete, then reaction 2 will start, then reaction 2 is complete, then reaction 3 will start. Okay, so this reaction will occur one after another, not simultaneously. ठीक है, ये कोई भी रिएक्शन में ऐसे होता है, एक के बाद एक। तो ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट ले लिए, तो पीएच हम लोग देखें, पीएच 13 के आसपास आ रहा, सही है? ओके, पीएच 13 के आसपास आ रहा, तो हम HCl ऐड करेंगे, HCl ऐड करेंगे, एसिड ऐड कर रहे हैं, तो पीएच कम होगा। रिएक्शन 1 हो गया, पीएच कम हो गया, पीएच अराउंड 10 पॉइंट कुछ हुआ, 11 के आसपास हुआ, क्लोज टू 11, ठीक है? रिएक्शन 1 होने के बाद पीएच 11 के आसपास आया, क्योंकि हम लोग HCl ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन 1 होने के बाद पीएच 11 के आसपास आ रहा, आ गया 11 के आसपास। फिर HCl ऐड कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सोल्यूशन में दोनों है। फिर HCl ऐड करने से NaOH खत्म हो गया, फिर Na2CO3 रिएक्ट करने लगे। तो Na2CO3 जब HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन 2 जब हो रहा है, पीएच हो गया 8, पीएच 8 के आसपास आ गया। पीएच जब 8 हो गया, अब रिएक्शन 3 होगा, फिर HCl कंटिन्यू करेंगे ऐड करने के लिए, क्योंकि सब Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो चुका है। All Na2CO3 is converted into NaHCO3. So if NaHCO3 is converted, then reaction 3 will be started. After completion of reaction 2, reaction 3 will be started. When reaction 3 is started, then HCl is reacted with this NaHCO3. So HCl is reacted with NaHCO3. When reaction 3 is started, reaction 3 is completed, then pH is coming to 3 because carbonic acid is produced. So pH is coming to 3. When reaction 3 is completed, pH is coming to be 3. Okay, clear? So pH is coming 3 when reaction 3 is completed. Now what can we do? Now suppose you take phenolphthalein. You take phenolphthalein indicator. So if you take phenolphthalein indicator, then phenolphthalein indicator, once reaction is complete, phenolphthalein indicator can show the color change. At what pH color will change for phenolphthalein? 8.1.
because you started the reaction from high pH, then pH will reduce 13 to 12, 12 to 11, 11 to 10, 9, 8, 8. When pH is 8, phenolphthalein will change the color. When pH is 8, so you will find that only reaction 1, reaction 2 is complete. So phenolphthalein will show the end point, it will change the color, then you will think that reaction is over for reaction 1 and reaction 2. Understood? So phenolphthalein will show the end point of reaction 1 and reaction 2 only. It will not wait till third reaction started or completed. It will change the color after completion of first two reactions only. ठीक है? नाउ सपोज फिनाप्थलीन ब्यूरेट में लिए थे, उसको फेंक दिए, सोल्यूशन को फेंक के फिर डिस्टिल वाटर से साफ कर दिए। तो इसको डिस्टिल वाटर से साफ करने के बाद फिर हम लोग सोल्यूशन ले लिए। तो फिर सोल्यूशन लेके फिर हम लोग इसमें जो इंडिकेटर लिए वो इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। ओके, हम लोग क्या किए, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिए। सही है? तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर अगर लेंगे तो मिथाइल ऑरेंज कितना पीएच में कलर चेंज करेगा? 3.1. So that means 3.1 means first reaction will be over, it will not change the color, it will show orange color only. When first reaction is over, orange color, second reaction is over, still orange color, because pH 8 में तो orange आएगा, 11 में orange आएगा, 13 में भी orange आएगा, इसका orange color ही रहेगा। थर्ड रिएक्शन हो गया, pH 3 के आसपास आ गया, तो क्या करेगा, ऑरेंज से रेड हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, ऑरेंज से रेड कलर आ जाएगा। तो ऑरेंज से रेड आ जाएगा तो हम लोग क्या सोचेंगे कि रिएक्शन इज कंप्लीट, मींस इट विल शो द एंड पॉइंट फॉर रिएक्शन 1, 2 and 3, माने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 रिएक्शंस, ऑल 3, देन इट विल चेंज द कलर। ठीक है? तो फिनाप्थलीन क्या करेगा, कलर चेंज करेगा जब इसका 3 रिएक्शन हो गया। इसका बहुत पेशेंस है, वेट करेगा, पूरा रिएक्शन हो गया तब जाके कलर चेंज करेगा। लेकिन मिथाइल ऑरेंज का पेशेंस नहीं है, 2 रिएक्शन हो गया उसके बाद कलर चेंज कर देगा। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, मिथाइल ऑरेंज जब यूज कर रहे हैं हम लोग सेकेंड थर्ड रिएक्शन को हम ऐड करके ऐसे लिख सकते हैं। अगर सेकेंड थर्ड रिएक्शन को ऐड करके ऐसे लिख दिए तो यहाँ पे Na2CO3 का एन फैक्टर बताओ, HCl का एन फैक्टर बताओ। इसमें HCl का एन फैक्टर 1, Na2CO3 का 2 है। ठीक है, 2 है। तो मतलब Na2CO3 अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है, उसके लिए 2 HCl चाहिए। अगर 2 HCl दोगे ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा, जिसमें Na2CO3 का एन फैक्टर 2 है। ठीक है? तो अगर मिथाइल ऑरेंज हम यूज कर एन फैक्टर यहाँ पे देखो, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये सब एसिड बेस रिएक्शन है? तो यहाँ पे एन फैक्टर HCl का नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा। तो इसका एन फैक्टर 1 है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका एन फैक्टर 2 होगा तभी तो कोफिशिएंट 2 है। या इसका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल सोडियम आयन होगा, क्योंकि सोडियम रिप्लेस हो गया, सोडियम रिप्लेस होकर क्या दिया, H2CO3 दिया। हाँ, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बेसिक सॉल्ट है तो इसका पॉजिटिव चार्ज +2 है तो एन फैक्टर 2 है। ऐसे भी देखो वैसे भी देखो, कोफिशिएंट 2 है इसलिए एन फैक्टर 2 है। तो अगर एन फैक्टर 2 है तो 2 HCl में ये फुली कंज्यूम हो रहा है। ओके, अगर 2 HCl में फुली कंज्यूम हो रहा है तो रिएक्शन 2 में 1 HCl यूज हुआ तो कितना कंज्यूम होगा, 2 HCl में फुल कंज्यूम होगा तो 1 HCl में कितना कंज्यूम होगा, हाफ कंज्यूम होगा। यस, वेरी गुड, हाफ कंज्यूम होगा।
तो जब फिनाप्थलीन हम यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फिनाप्थलीन ये दोनों का एंड पॉइंट दिया, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 assuming n factor 2। ओके, तो फिनाप्थलीन केस में हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 assuming n factor 2। क्योंकि यहाँ पे एक HCl दिया गया, क्योंकि एंड पॉइंट यहाँ तक आया, कलर चेंज यहाँ तक हुआ, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि Na2CO3 कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, हाफ न्यूट्रलाइज हुआ, रिएक्शन 2 में हाफ न्यूट्रलाइज हुआ, तो रिएक्शन 3 में हाफ बच गया। अगर रिएक्शन 2 और 3 दोनों हो जाएगा तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर ये इक्वेशन लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि Na2CO3 कंप्लीटली कंज्यूम है, ये कंप्लीटली कंज्यूम, ये पार्शियली कंज्यूम रिएक्शन 2 में। ठीक है, तो फिनाप्थलीन केस में लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, क्योंकि एक ही HCl यहाँ पे कंज्यूम हुआ, 2 HCl में फुल होता है, एक HCl में हाफ होगा, अज्यूमिंग n फैक्टर 2, रिमेंबर। ठीक है, सही है। अब मिथाइल ऑरेंज में क्या लिखेंगे, मिथाइल ऑरेंज में क्या करेगा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या होगा, देखो फिनाप्थलीन में क्या हो रहा है, ये दो रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फिनाप्थलीन लेंगे तो हमारा ये रिएक्शन होगा, यही दो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें HCl का ग्राम इक्विवेलेंट किसके साथ इक्वल होगा, NaOH के साथ इक्वल होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH होगा। ओके, प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। लेकिन 2HCl में इसका फुल कंज्यूम हो रहा है Na2CO3 का, जिसमें n फैक्टर 2 है। अगर 1HCl लेंगे तो Na2CO3 का हाफ कंज्यूम होगा ना, जिसमें n फैक्टर 2 है इसका, क्योंकि 2HCl में फुल कंज्यूम हो रहा है जिसमें n फैक्टर 2 है, एक HCl में हाफ कंज्यूम होगा, जितना कंज्यूम हुआ उसका आधा होगा, तो हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ठीक है, क्योंकि Na2CO3 सेकेंड रिएक्शन में हाफ इक्विवेलेंट कंज्यूम हो रहा है, थर्ड रिएक्शन में हाफ इक्विवेलेंट कंज्यूम हो रहा है, तो सेकेंड थर्ड को दोनों मिलाएंगे तो ये रिएक्शन आएगा, तो Na2CO3 कंप्लीटली कंज्यूम होगा। मिक्स करने से NaHCO3 कैंसिल हो गया, तो Na2CO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में कम कम नहीं, वो पीएच जो है, पीएच डिपेंड करता है उसका कितना डाइल्यूशन है, पीएच फिक्स नहीं होता है। अगर कोई एसिड है, हम डाइल्यूट एसिड लेंगे तो पीएच कम आ सकता है ना। हाँ हाँ हाँ, पीएच कम कम होगा ऐसे। तो पीएच देखो, कार्बोनिक एसिड तो 4 के आसपास होता है, ठीक है, तब तो कलर चेंज नहीं होगा, ये फिर टाइट्रेशन नहीं हो सकता है, तो लेकिन टाइट्रेशन तो हो रहा है एक्सपेरिमेंट से। तो पीएच जो है ना, कोई भी एसिड का पीएच तो फिक्स नहीं है ना, वो कितना डाइल्यूट कर रहे हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे उससे ज़्यादा आयनाइज होगा, तो ज़्यादा आयनाइज होगा तो अकॉर्डिंगली पीएच आएगा, तो यहाँ पे पीएच 3 के आसपास आ रहा है। तो नेक्स्ट देखो, अगर अगर हम लोग Na2CO3 में 2HCl देंगे तो पूरा कंज्यूम होगा, 1HCl देंगे हाफ कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम लोग फिनाप्थलीन को इक्वेशन को और एक तरीके से लिख सकते हैं, और एक कैसे लिखेंगे, और एक लिखेंगे, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इक्वेशन लिखने के लिए, ये नहीं चाहिए।
हाँ वही है। देखो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्शन हुआ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो चीज़ है फिनाइलफ्थैलीन में यहाँ पे और लिख रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ये तो लिख सकते हैं क्योंकि HCl NaOH रिएक्ट कर रहा है, प्लस इसका क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 assuming n factor 1, ये लिख सकते हैं। So what is duplex competition? इसका n factor 1 assume कर लो, इसका n factor 1 कैसे करेंगे, इसका n factor 1 है, इसका भी n factor 1 है, कोफिशिएंट 1 ना, और Na2CO3 में एक ही Na रिप्लेस हुआ यहाँ पे, NaHCO3 हुआ, तो एक H एक Na को रिप्लेस किया तो NaHCO3 हुआ, तो यहाँ पे इसका n factor 1 अगर ले लोगे तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अगर ये लिख रहे हैं तो n factor 1 होगा, तो फुल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, या अगर Na2CO3 का n factor 2 लोगे, मतलब ये रिएक्शन है, तो 2 में ये रिएक्शन है तो 2 HCl में फुल हो रहा है, तो 1 HCl में आधा होगा, तो ये लिखना है हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर Na2CO3 का n factor 1 लोगे तो फुल ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हो, अगर Na2CO3 का n factor 2 लोगे तो 2 में 2 HCl चाहिए, n factor 2 में 2 HCl चाहिए, अगर 2 HCl में फुल हो रहा है तो Na2CO3 में एक HCl कंज्यूम हो रहा है, तो आधा इक्विवेलेंट होगा उसका, तो इसमें लिखना है हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ठीक है, हाँ, n फैक्टर अपना मर्जी से वन और 2 ले सकते हो, और कोई मर्जी नहीं चलेगा, इधर 1 और 2। n फैक्टर क्या होता है, कोफिशिएंट होता है ना, ये देखो, हम n फैक्टर, हम पहले क्या बोले थे, n फैक्टर मतलब दूसरे का कोफिशिएंट, इसका n फैक्टर 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये रिएक्शन को बैलेंस करके लिख NaHCO3, ये बैलेंस्ड है NaCl। आप तो पहले पढ़े थे सर, आप बताए थे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट, इसका n फैक्टर होगा, ये 1 है तो n फैक्टर 1, HCl का यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो n फैक्टर 1 होगा, आप बताए थे। हाँ, इसके हिसाब से इसको 1 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। n फैक्टर अगर 1 लोगे तब ये बोलोगे कि ये पूरा ग्राम इक्विवेलेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। अब बोलोगे नहीं सर, हम वो रिएक्शन को सही नहीं मानते हैं, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, हम ये रिएक्शन को सही मानते हैं जिसमें n फैक्टर 2 है और Na2CO3 HCl के साथ पूरा कंज्यूम हो रहा है। तो अगर इसको पूरा कंज्यूम हो रहा है, इसको पूरा न्यूट्रलाइज रिएक्शन लोगे, तो अगर 2 HCl मिलेगा तो पूरा न्यूट्रलाइज होगा, अगर एक HCl मिलेगा तो आधा होगा, उसका आधा होगा कि नहीं, बोलो। अगर अगर घर में 2 एग खाओगे तो पेट पूरा भरेगा, घर में मम्मी खाना बनाई, एग करी है, बोलोगे मेरे को मिनिमम 2 एग चाहिए, 2 एग खाओगे तो पेट भरेगा। अगर मम्मी बोली कि नहीं एक एग दूंगी, तो 1 एग खाओगे तो आधा भरेगा ना, है कि नहीं। अगर 2 HCl है तो पूरा इक्विवेलेंट कंज्यूम हो रहा है n फैक्टर 2 एज्यूम करके, अगर हम एक HCl देंगे तो इसका आधा ही कंज्यूम होगा, क्योंकि 2 HCl में पूरा हो रहा है तो 1 HCl में आधा कंज्यूम होगा, तो हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 लिख दो, लेकिन ब्रैकेट में n फैक्टर 2 लिखना है। क्यों? क्योंकि हम इसको पूरा मान रहे हैं ना, इसको जब पूरा मान रहे हैं n फैक्टर 2 ले रहे हैं, और इसमें HCl अगर 1 है तो आधा ले रहे हैं तो n फैक्टर 2 रहेगा, तो ऐसे लिखो, नहीं तो ऊपर जो मैंने लिखा वो लिखो। ठीक है, और टेबल में उसको फेयर कर देंगे। अब देखो बैलेंस करेंगे, सुनो सुनो, ऐसे कोई रिजिड नहीं है। देखो, जब सब्जेक्ट लर्न कर रहे हो कोई रिजिडिटी मत रखो, बैलेंस करने करना नहीं करना वो अपना अपना चॉइस है। हम बैलेंस, हम लोग देखो ह्यूमन बीइंग क्या है, इंटेलिजेंट एनिमल, हम लोग कम काम करके सब कुछ हासिल करना चाहते हैं,
तो न्यूमेरिकल जब बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं जल्दी आसानी से बन जाए, इसीलिए हम लोग बैलेंस नहीं करना चाहते। लेकिन जब सब्जेक्ट लर्न कर रहे हो तो क्वेश्चन, हाँ, कट रहा है तो नेटवर्क चेंज करने। ক্লাস করছি, বহুত ইম্পর্টেন্ট কথা সব করছি। नहीं नहीं नहीं, सुनाई दे रहा है अभी? हाँ, तो ये मिथाइल फिनोप्थलीन में ये हो गया, फिनोप्थलीन में ये इक्वेशन आ गया, उसको फेयर कर देंगे। अगर मिथाइल ऑरेंज ले रहे हैं तो क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज तीनों रिएक्शन कराएगा, तीनों रिएक्शन के बाद कलर चेंज होगा। सो तीनों रिएक्शन मतलब रिएक्शन 2 3, रिएक्शन 2 प्लस रिएक्शन 3 को ऐड करने से ये आएगा, रिएक्शन 2 प्लस रिएक्शन 3 को ऐड करने से ये इक्वेशन आएगा। तो ये इक्वेशन आया, तो उसमें हम लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 assuming n factor 2। ओके, तो यहाँ पे Na2CO3 दो HCl से रिएक्ट किया, ये दोनों को ऐड कर दोगे तो आएगा। तो Na2CO3 दो HCl से रिएक्ट किया, तो हम एज्यूम करेंगे इसका n फैक्टर 2 फुल कंज्यूम हो रहा है, तो फुल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, और NaOH फुल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, क्योंकि इसके साथ भी रिएक्ट किया। तो मिथाइल ऑरेंज लेने से ये हम लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? Is that clear? Voice is clear, audible? So should I go to next page then? हाँ, इसीलिए तो हाफ ले रहे हैं ना, फिनोप्थलीन में, इसीलिए तो हाफ इक्विवेलेंट ले रहे हैं, पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा है इसीलिए ले रहे हैं। लेकिन मिथाइल ऑरेंज लेंगे तो पूरा रिएक्शन होगा ना, 1 2 3 सब होगा ना, तो सब होगा तो फुल इक्विवेलेंट लेंगे, इसमें इसमें फुल लेंगे, इसमें हाफ लेंगे, फिनिश, सिंपल। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसमें हम लिखते हैं मिक्सचर, लिखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या लिए, NaOH प्लस, अच्छा, इसको अलग कलर देने, तो यहाँ पे मिक्सचर लिए हम लोग। मिक्सचर लेने के बाद यहाँ पे इंडिकेटर क्या यूज किए लेंगे, इंडिकेटर, यहाँ पे रिएक्शन लेंगे उसका, रिएक्शन, इसमें लेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन, इसमें इक्विवेलेंट रिलेशन लेंगे। ओके, तो मिक्सचर में हम क्या लिए थे, मिक्सचर में हम लिए थे NaOH प्लस, NaOH प्लस Na2CO3, ये जो लिए थे, ठीक है। इंडिकेटर क्या लिए, सेकंड में लिए NaOH प्लस
Na2CO3। ओके, थर्ड में भी यही लेंगे, प्लस Na2CO3। अब इसमें इंडिकेटर क्या लिए थे? इंडिकेटर लिए थे हम, जो इंडिकेटर लिए थे वो था क्या? हाँ, हाँ बड़ा रखे, बड़ा रखो, ये छोटा छोटा रखो, वो बड़ा रखो। तो पहले यहाँ पे लिखो फिनाप्थलीन। तो फिनाप्थलीन को शॉर्ट में लिख सकते हो HPH। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो MO। ओके, तो रिएक्शन क्या हो रहा है, ऐसे लेने से रिएक्शन क्या हो रहा है देखते हैं। तो रिएक्शन फिनाप्थलीन लेने से हमारा रिएक्शन एक हो रहा है NaOH प्लस HCl, क्या दे रहा, NaCl प्लस वाटर। और नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो रहा है Na2CO3 प्लस HCl, ये दे रहा HPH। तो Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस NaHCO3। ये रिएक्शन हो रहा है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज देने से क्या क्या रिएक्शन हो रहा है? NaOH प्लस HCl, ये दे रहा NaCl प्लस वाटर। और Na2CO3 क्या लिखे, +2HCl लिखे या रिएक्शन 2 रिएक्शन 3 लिखे? NaCl, हाँ, NaHCO3, फिर ये रिएक्ट कर रहा है NaHCO3 प्लस HCl, ये दिया NaCl प्लस H2CO3। क्योंकि तीसरा रिएक्शन में पीएच 3 आ रहा है, फिनाप्थलीन में 8 में कलर चेंज हो गया एक बार, 8 में कलरलेस हो गया, 3 में भी कलरलेस रहेगा ना, तो और कलर चेंज नहीं होगा। HCl डालने से भी कलर चेंज नहीं होगा। रिएक्शन होगा, हम लोग तो जज नहीं कर पाएंगे ना, हम कलर चेंज कहाँ तक हो रहा है वही लिख रहे हैं। ऐसे ही रिएक्शन तो होता रहेगा, लेकिन हम हमें कैसे पता चलेगा? हमें जो पता चलेगा हम लोग वही बताएंगे ना, हमें जो दिखेगा वही बोल सकते हैं, जो नहीं दिख रहा उसको बोल सकते हो क्या? तो वही चीज है, हमें हमें दिख रहा है कि ये रिएक्शन हो रहा है क्योंकि कलर चेंज यहाँ तक हो रहा है, उसके बाद रिएक्शन होगा जरूर, लेकिन कलर चेंज पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट इक्वेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होगा, इसमें हम कर दिए थे, फिर से लिख देते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होगा। इक्विवेलेंट रिलेशन, gram equivalent of HCl is equal to gram equivalent of NaOH plus half gram equivalent of
Na2CO3 assuming n factor 2, ठीक है। तो Na2CO3 का हाफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो फिनाप्थलीन देने से कंज्यूम होगा, क्योंकि HCl जो है HCl 1 मोल यूज हुआ, 2 मोल यूज होता तो फुल ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम होता। तो मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, सब पूरा होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl is equal to gram equivalent of NaOH plus gram equivalent of Na2CO3 n factor is 2, ठीक है, सही है ना। मिथाइल ऑरेंज में पूरा का पूरा कंज्यूम होगा, मिथाइल ऑरेंज में पूरा का पूरा कंज्यूम होगा। ओके, हम एक काम करते हैं, हम मिथाइल ऑरेंज ऐड करते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे। हाँ हाँ यस हाँ, तो हम क्या किए, मिथाइल ऑरेंज ऐड किए, हम क्या किए मिथ अच्छा मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ अभी सुनाई दे रहा, इज इट ऑडिबल नाउ, अभी भी कट रहा है। ओ अभी ठीक है। आप क्या किए, मिथाइल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर गेटिंग एंड पॉइंट ड्यू टू फिनाप्थलीन, ठीक है। समझ में आया ये, माने फिनाप्थलीन से एंड पॉइंट आ गया। इसमें दोनों दोनों इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, मैंने पहले फिनाप्थलीन से एंड पॉइंट आ गया, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज दे दिए, फिर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो कौन सा रिएक्शन होगा बोलो। नहीं नहीं, हम हाँ, क्योंकि ये HPH का रिएक्शन लास्ट वाला होगा, इसमें होगा NaHCO3 प्लस HCl, ये देगा NaCl प्लस H2CO3, लास्ट वाला रिएक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि फिनाप्थलीन फर्स्ट तो रिएक्शन कर दिया था ना, मतलब देखो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा स्टोरी बोल रहा हूँ, ठीक है। फिनाप्थलीन जो है वो मूवी देखने गया था थिएटर में, ठीक है, लेकिन उसका पेशेंस नहीं है, मूवी जो है उसका 3 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो फिनाप्थलीन क्या किया, पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद थिएटर से भाग गया, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 देखा फिर थिएटर से चला गया। लेकिन मिथाइल ऑरेंज का पेशेंस बहुत ज़्यादा है,
मिथाइल ऑरेंज क्या सोचेगा कि मैं तो मूवी टिकट दिया हूँ, टिकट तो मैं पूरा देखूंगा, वो पूरा एंड तक देख रहा है। पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 हुआ, उसके बाद घर आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, नहीं 2 पार्ट देखने के बाद स्टोरी तो समझ में आ गया। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हीरो विलेन का फाइटिंग होता है, तो इसमें हीरो जीतता है, फिर हीरो हीरोइन का शादी होता है, बस। तो ये बोल के फिनाप्थैलिन भाग गया, ठीक है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज क्या किया, नहीं नहीं मेरे को पूरा देखना है, मूवी लास्ट तक देखूंगा, हर एंड एवरी मोमेंट में एंजॉय करूंगा। तीनों देख के आ गया। अब उसका तीसरा दोस्त आ गया, वो फिनाप्थैलिन को बोला एक काम करो, तुम जिस समय मूवी छोड़ दोगे मेरे को कॉल कर लो, मैं बाहर वेट करूंगा, मेरे को टिकट दे देना, ठीक है। तुम फर्स्ट 2 पार्ट देख लो, कोई बात नहीं। जो तीसरा दोस्त है वो टिकट नहीं दिया, ठीक है। तीसरा दोस्त ये जो बाहर आ गया, इसका टिकट लेके फिर मूवी हॉल में घुस गया और उसका सीट में बैठ गया, सही है। तो इसमें वो क्या करेगा, थर्ड पार्टी देखेगा ना मूवी का, बोलो। तो क्योंकि फर्स्ट 2 पार्ट तो फिनाप्थैलिन देख लिया, अब ये जब एंट्री करेगा ये थर्ड पार्ट देखेगा, ये पूरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये तो चला गया, ये तो देख लिया। और ऐसे तो नहीं होगा, ये टिकट खरीदेगा, इसको दे देगा, ये तू देख। ये तो ऐसा नहीं है, ये पूरा टिकट ले लिया उसको दे दिया, देख, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये टिकट लिया, इसका टिकट लेके ये जहाँ से छोड़ा वहाँ पे जाके एंट्री करके देख रहा, ठीक है। तो यही है, तो इसमें थर्ड रिएक्शन ही होगा, क्योंकि जो पेंडिंग वर्क है ये कराएगा। ओके, यस। जोर से बोलो। सेकेंड पार्ट, एक सेकंड, जो मेरा सेकेंड पार्ट, टेबल का जो सेकेंड पार्ट है, हम लोग क्या कर रहे हैं, Na2CO3 दो स्टेप से रिएक्ट करना। वो क्या है, ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, क्या आएगा, Na2CO3 प्लस 2HCl gives you NaCl प्लस H2O प्लस CO2, H2CO3 लिख दो। तो ये रिएक्शन सेकेंड और थर्ड का मिलाने से आएगा। तो इसमें Na2CO3 का एन फैक्टर कितना है, 2 है, तो 2HCl रिएक्ट कर रहा है, 2HCl रिएक्ट कर रहा है, तो Na पॉर्डन Na2CO3 का एन फैक्टर 2 है, Na2CO3 का एन फैक्टर 2 है, ये दोनों रिएक्शन रिएक्ट कर रहा है, ओके, दोनों रिएक्ट कर रहा है, तो इसका फुल इक्विवेलेंट कंज्यूम होगा। एन फैक्टर 2 है तो 2 HCl यहाँ पे मिल गया, इसको फुल इक्विवेलेंट कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ पे NaOH कंज्यूम हुआ, ठीक है। तो थर्ड में क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट Na2CO3 होगा, ठीक है। मतलब ये जो थर्ड केस है, मान लो इसको C ले लो, इसको B ले लो, इसको A ले लो, तो थर्ड केस C क्या होगा, B माइनस है, बोलो होगा कि नहीं। तो ये थर्ड केस होगा, थर्ड दोस्त क्या करेगा, वो उतना मूवी देखेगा जितना ये देखा माइनस जितना ये देखा। ये तो किसी को टिकट शेयरिंग नहीं करेगा, कंजूस है, वो अपना देखेगा, लास्ट तक रहेगा, आएगा। ये क्या किया, ये इसका पेशेंस नहीं है, बीचों बीच आ जा रहा है मूवी, आधा देख के आ गया और टिकट इस दोस्त को दे दिया। तो ये जितना देखेगा मूवी, ये देखा माइनस ये देखा, ये दोनों को माइनस करने से ये आएगा, रिएक्शन में भी वही हो रहा है, ठीक है। समझ में आया तो ये नोट कर दो, फिर मैं
लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है, हाँ उसके बाद आज दोनों रिएक्शन हो गया, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज इज एडेड, इसीलिए लिखा है ना मिथाइल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर गेटिंग एंड पॉइंट ड्यू टू फिनाप्थलीन। फिनाप्थलीन से एंड पॉइंट आ गया, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज ऐड किया। मतलब मूवी का एंट्री इंटरवल के बाद हुआ। बाहुबली देखने गया था, तो जब कड़ापा मर गया उसके बाद मूवी में एंट्री किया। ठीक है, अब क्यों होगा, क्योंकि ये तो ये जो पेंडिंग वर्क है वो करेगा ना। Na2CO3 के साथ HCl हाफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ कंज्यूम हुआ, हाफ यहाँ कंज्यूम हुआ, थर्ड रिएक्शन में और हाफ कंज्यूम होगा। तो ये थर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो जो हाफ बच गया यहाँ पे वो कंज्यूम होगा। ठीक है, मतलब 2 HCl मिलेगा तो फुल कंज्यूम होगा। हाँ हाँ 20, बस बस। रिएक्शन 2 में आधा कंज्यूम हो रहा है, रिएक्शन 3 में आधा कंज्यूम हो रहा है, और 2 3 को मिलाएंगे तो पूरा कंज्यूम हो रहा है। तो अगर रिएक्शन 3 होगा तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, Na2CO3। अगर इसको बोलोगे नहीं सर मैं लिखूंगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, वो भी सही है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 लिखोगे वो भी सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। हाँ यहाँ पे HCl NaHCO3 से रिएक्ट किया, HCl NaHCO3 से रिएक्ट किया, तो हम लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। लेकिन मिक्सचर में NaHCO3 नहीं है, याद रखो। तो NaHCO3 कैसे निकालें, ये NaHCO3 को निकालना है, कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, Na2CO3 से। तो Na2CO3 का मोल NaHCO3 का मोल सेम है, तो वहां से हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि Na2CO3 जब रिएक्शन 2-3 में रिएक्ट कर रहा है तो फुल कंज्यूम हो रहा है, रिएक्शन 2 में हाफ कंज्यूम हो रहा है, रिएक्शन 3 में हाफ कंज्यूम हो रहा है। और 2 HCl में फुल हो रहा है तो 1 HCl में हाफ होगा, ऐसे बोल सकते हैं। देखो Na2CO3 प्लस 2 HCl ये देगा NaCl प्लस H2CO3। अगर 2 HCl दे रहे हैं, ये n फैक्टर 2 है, तो ये पूरा कंज्यूम हो रहा है, फुल, इसमें फुल हो रहा है। मतलब इंटरवल के पहले मूवी देखेगा बाद में देखेगा तो फुल देखा बोलेंगे, वो इंटरवल तक देखा, और एक दोस्त आया इंटरवल के बाद देखा। ठीक है, तो आधा आधा होगा ना फिर। तो ये रिएक्शन 2 में आधा इक्विवेलेंट कंज्यूम हो रहा है Na2CO3 का। रिएक्शन 3 में जब ये NaCO3 हो गया तो रिमेनिंग हाफ इसमें कंज्यूम हो रहा है। तो रिएक्शन 3 को हम इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3 लिख सकते हैं, या हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 एज्यूमिंग एन फैक्टर 2, ये ब्रैकेट में लिखना है, वो भी बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो फिर मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सीधा सोचो तो समझ में आएगा। तो अभी हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज थोड़ा करते हैं। हम मिक्सचर जो है, मिक्सचर को अलग अलग लेते हैं। मिक्सचर को हम लिए NaOH प्लस NaHCO3, ये ले लिए। मिक्सचर लिए NaOH प्लस NaHCO3, सो 3 बार ले लेते हैं।
कि 3 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। ले लिए। अब इसके बाद हम इंडिकेटर लेंगे। इंडिकेटर क्या ले सकते हैं? इंडिकेटर पहले लेंगे ओनली फिनाफ्थलीन। हाँ, तो पहले लेंगे ओनली फिनाफ्थलीन, मतलब खाली फिनाफ्थलीन लेंगे HPH। दूसरे में लेंगे ओनली मिथाइल ऑरेंज, मतलब अकेला एक ही लेंगे। रिएक्शन एंड कलर चेंज तक करेंगे रिएक्शन, फिर इसके बाद फेंक देंगे, रीडिंग नोट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले फिनाफ्थलीन ऐड करेंगे, एंड पॉइंट आ गया, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे। मिथाइल ऑरेंज इज एडेड after getting end point due to phenolphthalein. Methyl orange is added after getting end point due to phenolphthalein. Phenolphthalein का एंड पॉइंट आ गया, तब स्टार्ट किए और मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिए उसी कंटेनर में, सेम कंटेनर में, फिर टाइट्रेशन किए, फिर जब कलर चेंज हुआ नोट किए। समझ में आया कि नहीं? नहीं नहीं, मिथाइल ऑरेंज बाद में ऐड किया ना, पहले फिनाफ्थलीन ऐड किए, एंड पॉइंट आया, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज ऐड किए। अरे उल्टा समझ रहे हो, पहले फिनाफ्थलीन ऐड किए, एंड पॉइंट आ गया, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज ऐड किया। तो उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो ये सही है लैंग्वेज। मिथाइल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर गेटिंग एंड पॉइंट ड्यू टू फिनाफ्थलीन, माने फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट आ गया, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, उसके बाद रिया। हाँ वही सब लेंगे, कॉमन है, सब में होगा। लेकिन मिक्सचर चेंज हो गया ना, अब तो रिएक्शन चेंज होगा। अब रिएक्शन क्या होगा देखते हैं। मिक्सचर चेंज हो गया, रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। ओके, तो रिएक्शन इसमें क्या होगा बोलो, ओनली फिनाफ्थलीन देने से क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा, तो NaOH प्लस HCl वाला रिएक्शन होगा। ये देगा NaCl प्लस वाटर, ये देगा, यही रिएक्शन होगा। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस वाटर, ये रिएक्शन होगा। लेकिन फिनाफ्थलीन मिथाइल ऑरेंज लेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? दोनों रिएक्शन होगा। तो NaCl प्लस वाटर, अब NaCO3 फिर लेंगे हम, NaCO3 प्लस HCl, ये होगा NaCl प्लस H2CO3 लिख सकते हैं, दोनों रिएक्शन होगा। अब फिनाफ्थलीन से एंड पॉइंट आ गया था, वो पास्ट हो गया, उसके बाद स्टार्ट किए। हाँ, अब मिथाइल ऑरेंज ऐड करने से ओनली NaHCO3 प्लस HCl देगा NaCl प्लस H2CO3। तो इसमें इक्विवेलेंट रिलेशन देखते हैं। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंट रिलेशन is gram equivalent of HCl is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH होगा। इसमें NaHCO3
इसमें NaSCO3 कहीं आया नहीं, कहीं सीन में नहीं आया। NaSCO3 कोई सीन में नहीं है इसमें। ओके, और इसमें क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस होगा, प्लस ये HCl ये HCl दोनों ले रहे हैं ना, ये दोनों प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करके ले रहे हैं, टोटल HCl ले रहे हैं, तो इधर दिस प्लस दिस होगा। ओके, क्लियर। अब थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, क्योंकि यहाँ पे Na2CO3 नहीं है, तो NaHCO3 के टर्म में ही एक्सप्रेस करना है, जो मिक्सचर दिया उसके टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको, बोलो। तो ये नोट कर लिए, तो फिर नेक्स्ट पेज में चले। यस, टेल मी। क्योंकि NaSCO3 जब रिएक्ट करेगा पीएच हो जाएगा 3, NaOH रिएक्ट करने के बाद पीएच कम हो जाएगा, तो फिनाप्थलीन क्या करता है, पीएच 3 तक नहीं जा पा रहा, उससे पहले कलर चेंज करता है, तो रिएक्शन NaSCO3 का जो रिएक्शन स्टार्ट होगा उससे पहले ये कलर चेंज कर चुका होगा। ठीक है, क्योंकि इसका पीएच रेंज कम है ना, 8.1 से 10.5 पीएच रेंज कम है, तो NaSCO3 तो कम होगा ना, वो जब रिएक्ट करेगा पीएच 3-4 के आसपास आएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। ओके, अब ये मिक्सचर हम चेंज करेंगे। यहाँ पे मिक्सचर हम लेंगे Na2CO3 प्लस NaHCO3, इसमें इंडिकेटर लेंगे ओनली फिनाप्थलीन,
ओनली मिथाइल ऑरेंज। इसमें हाँ दो ही है। और कोई अगर देगा क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज में देगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देगा। मिथाइल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर इसमें रिएक्शन क्या होगा? हाँ, तो Na2CO3 plus HCl gives you NaHCO3 plus NaCl। यही रिएक्शन होगा, और कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज आधा देखेगा मूवी, इंटरवल तक देखेगा, उसके बाद नहीं देखेगा, क्योंकि वो छुप के गया है ना मूवी देखने। घर में नहीं बोला है, पापा आ गए घर, पापा पूछताछ कर रहे हैं कहाँ गया है लड़का, तो उसको पता चल गया, वो इंटरवल हो गया, उसके बाद आ जाएगा घर। ठीक है, तो घर में सोचेंगे ट्यूशन गया था, पता चल जाएगा चुप के मूवी गया है, तो मार पड़ेगी ना। तो ये आधा काम करेगा। समझ में आया कि नहीं? Na2CO3 Na2CO3 plus HCl gives you NaHCO3 plus NaCl। आप मिथाइल ऑरेंज देंगे, मिथाइल ऑरेंज क्या है, घर में बोल के गया है मूवी देखने, पापा मम्मी मम्मी का परमिशन है, रजामंदी है कि जाओ, हाँ ब्रॉड फैमिली है, फिल्म देखने के लिए अलाउड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मूवी है इसलिए। तो इसमें रिएक्शन क्या होगा? Na Na2CO3 plus HCl NaCl plus NaHCO3। हाँ, अभी दिखा, अभी दिख रहा है। ओ, तो नहीं तो मैं दूसरा नेटवर्क चेंज। हाँ, अभी अभी दिख रहा है। इज इट विजिबल नाउ? क्या नहीं दे रहा? तो इसमें क्या होगा लास्ट में, विच रिएक्शन?
तो उसके बाद इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होगा? assuming n factor 2. ओके, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें तो यहाँ पे ये भी है, ये भी है, तो मिथाइल ऑरेंज पूरा पैसा वसूल करेगा, पूरा देखेगा, लास्ट तक मूवी देखेगा। जब स्क्रीन ऑफ नहीं होता है, स्क्रीन का लाइट ऑफ होगा तब आएगा घर, ठीक है? तो इसको भी कंज्यूम करेगा, इसको भी कंज्यूम करेगा, पूरा का पूरा कंज्यूम करेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3. ओके, इज इट क्लियर? हाँ हाँ हाँ, ये जो है ना NaCO3 है, मान लो इसको 1 कर दो, ओके, और यहाँ से जो प्रोड्यूस हुआ वो 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा या 2 होगा या 1 + 2 होगा? हाँ, 1 + 2 होगा, मतलब समझ में आया? मतलब जो NaCO3 यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो भी रिएक्ट करेगा, जो पहले से लिया गया वो भी रिएक्ट करेगा, दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, देखो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। अगर Na2CO3 लेंगे, उससे जो NaCO3 प्रोड्यूस हुआ वो है 2, और NaHCO3 जो स्टार्टिंग से ले रहे हैं, NaHCO3 जो स्टार्टिंग से ले रहे हैं वो है 1, स्टैंडर्ड 1। तो अब जब NaHCO3 HCl से रिएक्ट करेगा, स्टैंडर्ड 1 रिएक्ट करेगा, 2 रिएक्ट करेगा, दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों करेंगे। तो दोनों जब करेंगे तो ये जो Na2CO3 का जो NaHCO3 था वो भी कर रहा है, तो यहाँ पे ये हाफ कंज्यूम हुआ, और ये जो 2 यहाँ रिएक्ट कर रहा है, फिर हाफ कंज्यूम हुआ कि नहीं, बोलो? Na2CO3 यहाँ हाफ कंज्यूम होता है ना, और सेकेंड में हाफ कंज्यूम होता है, तो फुल कंज्यूम हो गया। तो Na2CO3 2 HCl में फुल कंज्यूम हो रहा है, तो उसका n फैक्टर 2 हो गया, ओके। और NaCO3 स्टार्टिंग से है वो है 1, वो अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो उसका n फैक्टर 1 ही होगा, लेकिन उसका HCl जो होगा वो HCl का इक्विवेलेंट इसका इक्वल होगा। तो टोटल HCl का इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका होगा प्लस इसका होगा, और इसका यहाँ पे आधा हुआ, यहाँ पे आधा हुआ, फुल हो गया तो फुल ले लिए। तो ये जो है ये ग्राम इक्विवेलेंट NaCO3 का भी स्टार्टिंग से था, वो भी रिएक्ट किया, तो इसको भी ले लिए। समझ में आया? तो हाँ, फुल ले लेंगे, सही बात है। अब इसमें क्या लेंगे बोलो? ये क्रूशियल है, ये अगर कर लिए सब समझ में आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्लस एक ये है, ये 1 होगा या 2 होगा या 1 + 2 होगा? NaCO3 क्या होगा? 1 + 2 होगा या 1 या 2? हाँ,
यस, हाँ, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 1 प्लस हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 लिख सकते हो कि नहीं? इसको ऐसे लिखो, ये सही है, ये भी सही है। समझ में आया कि नहीं? लास्ट समझ में आ गया तो 100% हो जाएगा। ध्यान से सोचो। वन मतलब जो ओरिजिनल मिक्सचर का है, वन। टू मतलब जो Na2CO3 से प्रोड्यूस हुआ NaHCO3, ओ। मतलब ये पुराना है, ये पुराना ड्रेस है, घर में था 1 साल पहले। ये नया ड्रेस अभी खरीदा गया, ठीक है? तो दोनों ही पहनोगे ना। 1+2 रिएक्ट करेगा स्टील के साथ, ठीक है ना? बोलो, टेल मी। सेकेंड टेबल मतलब सेकेंड में तो ओनली मिथाइल तो फुल लिया, हाफ तो नहीं लिए। यहाँ देखो फुल ले रहे हैं ना, ये तो फुल है, ये भी फुल है। मिथाइल ऑरेंज में सब फुल फुल होगा। ये है बी, ये ए और सी। और याद रखो सी हमेशा B-A होता है। देखो ये NaHCO3 है, हाफ है, इसको माइनस कर दो, माइनस करने से और हाफ बचेगा, तो हाफ आ गया, प्लस NaHCO3 आ गया। तो सी केस हमेशा B-A होगा। सही है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो अभी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने से फिर परफेक्ट होगा। ओके, मैं क्वेश्चन दूं क्या? 25 ml of a mixture contains NaOH and Na2CO3. First case, okay, is titrated with 1 normal HCl. Is titrated with 1 normal HCl. The volume of HCl used is 25 ml using phenolphthalein indicator and with same HCl it requires 30 ml using methyl orange indicator.
using methyl orange indicator in a separate titration. एक साथ नहीं, अलग लिए, separate titration. Find होगा क्या? Can you do?
1 लीटर कन्वर्ट किए तो इंटू 40 किए ना। और आंसर क्वेश्चन मिल नहीं रहा, मेरे को याद था क्वेश्चन दे दिया, हो सकता है। एनीवेज Na2CO3 कितना आ रहा है? हाँ, एक 32 आएगा, एक 32 और एक कितना आएगा? 21 32 आ रहा। 21 दिया है। हाँ, 21.2 32 ऐसे कुछ दिया। देखो, हाँ, तो फिनाफ्थलीन यूज करेंगे, मान, हाँ, अगर फिनाफ्थलीन यूज करेंगे और मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं इसका। फिनाफ्थलीन का इक्वेशन होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl is equal to gram equivalent of NaOH plus half gram equivalent of Na2CO3, ये होगा। और इसमें होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 सॉरी NaOH प्लस फुल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ऐसे दिए तो बोलो, चलिए। तो ऐसे ही मैंने सॉल्व, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। और एक भी है, फर्स्ट केस में ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, एक में 25 ml यूज हुआ, उसका 1 नॉर्मल, तो होगा 1 इंटू 25 बाई 1000। सेकेंड में कितना यूज हुआ, 30 ml, उसका भी 1 नॉर्मल, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000 जाएगा। ये दो इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा, यहाँ आएगा 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से क्या आएगा, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 ऐसे आएगा। मतलब 10 इंटू 10⁻³ हो गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। सही है, ये आ गया एक। अब यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन, इसमें दोनों का इक्विवेलेंट ऐड करने से 30 आ रहा, Na2CO3 10 है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना होगा, 20 होगा ना। समझ में आया कि नहीं। तो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें वेट पूछा है, तो वेट कैसे निकालें। तो वेट के लिए, हाँ, कन्वर्ट भी करना है, कन्वर्ट भी करना है। पहले वेट निकालेंगे 25 ml में, 25 में, लेकिन क्वेश्चन में 1 लीटर में पूछा है। अगर 25 ml में इसको निकालोगे तो कितना आएगा, वेट, इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू n फैक्टर 2, तो हम ले रहे हैं ना, तो ये 10 इंटू 10⁻³ आएगा। तो इसका, इसको x ले लो, तो x कितना आ रहा, 106 इंटू 10 1060
अच्छा इसको 53 कर दूं ना, इतना क्यों? तो 53 10 530, तो 530 इंटू 10⁻³ लेकिन ये आ रहा है 25 ml में, क्योंकि सब कुछ हम 25 ml में टाइट्रेशन किए, लेकिन ओरिजिनल सोल्यूशन 1 लीटर में है बोल रहा है। मदर सोल्यूशन इंटू 1000 ml में कितना आएगा? 25 ml में इतना है, 1000 में इंटू 40 होगा ना है? तो 53/25 इंटू 1000, 53 530 होगा ना, 53 उधर गया 530 होगा, तो इंटू 10⁻³ तो ये ऐसे हो गया। तो 530/25 जो होगा वही आंसर, यहाँ पे 530/25 जो होगा वही आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इतना दिया, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना है आंसर? Y/40, इसका n फैक्टर 1, 20 इंटू 10⁻³ तो y कितना होगा? 40 2 800, 800 इंटू 10⁻³ आएगा, लेकिन ये 25 ml में। हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन कितना है? 1000 ml में, तो 1000 ml में y कितना आएगा? 800 इंटू 800/25 इंटू 1000 इंटू 10⁻³ ये कैंसिल हो गया, तो ये 800/25 जितना होगा उतना ग्राम। सही है, क्या समझ में आया कि नहीं? तो उसके बाद मैं नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देता हूँ, पैकेज में है ये क्वेश्चन, दूं क्या? स्टडी पैकेज में है, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ हाँ स्लाइड्स भेज दूंगा। हाँ VOD अगर अवेलेबल होगा मैं ऑन कर दूंगा, ठीक है, मैं देखूंगा तुरंत। राइट, और छोटा छोटा टॉपिक है वो, ओलियम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये छोटा छोटा क्या हार्डनेस ऑफ वाटर, वो 10-10 मिनट का टॉपिक है, 3 टॉपिक 10-10 मिनट का। और 30 मिनट, हाँ कल कल गैस स्टेट स्टार्ट कर देंगे, कल 30 मिनट्स में हो जाएगा। ओके, तो और एक क्वेश्चन है कि हम रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं, 1 ग्राम NaOH प्लस 1 ग्राम Na2CO3 प्लस 1 ग्राम NaHCO3 लिए in a mixture solution is titrated with 1 normal HCl। ओके, सॉल्यूशन, तो इसमें क्या करना है? फाइंड वॉल्यूम ऑफ HCl used when पार्ट है HPH पार्ट B, MO पार्ट C, MO is added, राइटिंग ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि इससे माउस से ठीक से नहीं हो रहा। MO is added after getting endpoint due to HPH। तो तीनों का वॉल्यूम निकाल पूछा है, कैसे क्या करेंगे बोलो? यहाँ पे तीनों को एक साथ लिए,
तो फर्स्ट अगर हम फिनाप्थलीन लिए इक्वेशन, हाँ रिएक्शन दोनों होगा, हाँ तो लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस क्या होगा, एस, नहीं नहीं NaCO3 नहीं आएगा, इतना ही आएगा फिनाप्थलीन। ओके, अगर मिथाइल ऑरेंज लेंगे तो क्या आएगा, सब आएगा, पूरा पैसा वसूल, पूरा पूरा करेगा, ये पूरा काम करेगा, इसका पेशेंस अच्छा है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, इसमें एन फैक्टर लिखना मत भूलो, प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, ये पूरा पूरा काम करेगा। थर्ड केस में केस सी MO आफ्टर HPH, माने ये दोनों का डिफरेंस होगा, नहीं दोनों का डिफरेंस होगा, इसमें डिफरेंस मतलब ये क्या कट हो गया, NaOH कट हो गया, ये 1 माइनस हाफ हो गया, ये हाफ Na2CO3, एन फैक्टर 2 लिखना है, प्लस ये भी रहेगा क्योंकि मिक्सचर में है ना, तीनों मिक्सचर में जो है उसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, याद रखो ऐसे। अब हम देखते हैं वॉल्यूम कितना आता है। ओके, ये सब इक्वेशन समझ में आ गया कि नहीं, इक्वेशन समझ में आ गया। अब वॉल्यूम देखना है कितना आता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या होगा, हाँ नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी वॉल्यूम वही तो चाहिए, इंटू 10⁻³ इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 1/40 इंटू एन फैक्टर 1 प्लस हाफ इंटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कितना है, इसका वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर है 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, V1 क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो इधर 1000/40 प्लस इधर 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1000/106, 1000/40 कितना होता है 25, 1000/40 25 है क्या, हाँ 25, ये 9 के आसपास आएगा, 25 प्लस 9 34 के आसपास, देख लो। अब इसका क्या होगा देखते हैं, ओके, इसका 1 इंटू V2 वॉल्यूम इंटू 10⁻³ इसका इक्विवेलेंट हो गया, इसका कितना होगा, वेट 1 है, मॉलिक्यूलर वेट 40, एन फैक्टर 1 होगा इसका, प्लस इसका इक्विवेलेंट कितना होगा 1 बाय मॉलिक्यूलर वेट 106, एन फैक्टर 2, ओके, प्लस इसका कितना होगा वेट 1 मॉलिक्यूलर वेट 84, इसका भी एन फैक्टर 1, तो क्या होगा V2 कितना आएगा, फिर 1000 उधर गया तो क्या आया 1000/40 प्लस ये 2 इधर कट हो गया 53, तो 1000/53 प्लस इधर आया 1000/84, सही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब इसका क्या होगा, इसका 1 इंटू V3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1/2 इंटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH is weight by molecular weight
into n factor 2 plus gram equivalent of NaHO3 weight by molecular weight into n factor 1। ठीक है, तो इसमें V3 कितना आएगा देखते हैं। तो ये इस तरफ गया तो 1000 हो गया, तो 1000 डिवाइडेड बाय 106 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 84, तो ये सॉल्व करने से आएगा आंसर। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हो, V2 माइनस V1 करने से आ जाएगा, वो शॉर्टकट है। तो नहीं तो सॉल्व करो, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमेशा ही होगा, कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, मैंने कर दिया ऐसे ही। ठीक है, और थोड़ा सा बच गया, थोड़ा थोड़ा बच गया, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा फॉर्मूला बच गया, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया। तो कल से हम गैसीय स्टेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टडी पैकेज सबको मिल गया ना? हाँ हाँ। कुरियर से आज जाता है क्या? मेरे को लग रहा है नहीं जा रहा है कुरियर से। ओ, तो अच्छा अच्छा, ठीक है तब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओके,